Namaste everyone, hope all of you are well. Today we are going to discuss class 11 chemistry P block elements chapter. P block elements chapter, this will be the first lecture. I have already uploaded one video of P block elements as in the name of introduction of P block elements. उस वीडियो में मैंने बस इतना ही बताया है कि P block elements क्या है, what is P block elements, what are the physical properties of P block elements. उसके बारे में मैंने बताया, जो मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें मैंने क्या सब पढ़ाया है, वो सारी डिटेल्स बोर्ड पे लिखी हुई है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट. P block elements, if I talk about, then you know very well, if I talk about any block elements, there are total 4 block elements, S block, P block, D block and F block elements, right. तो अगर मैं P block elements की बात करूं, the elements whose last electron enters into the p orbital is called P block elements. जनरली हम जानते हैं कि सेकेंड ऑर्बिटल से P block या P orbital, जो सेकेंड ऑर्बिट से P orbital स्टार्ट होता है. आप जानते होंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल है, राइट, और सेकेंड ऑर्बिट में s और p है. तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन या किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में जाता है तो उसको हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. सो वी नो वेरी वेल व्हाट इज p ब्लॉक एलिमेंट्स नाउ, राइट. How many groups are there in p block elements? There are total 6 groups, group number 13 to group number 18. 13 is known as boron family, 14 is known as carbon family, group number 15 is known as nitrogen family, group number 16 is also known as oxygen family or chalcogen, group number 17 is known as halogen, and group number 18 is known as inert gas. Now, what are the general electronic configuration of all these p block elements? General electronic configuration of p block element is ns2 np126, because it starts from group number 13, first electron in the p orbital and the last electron. So maximum in the p orbital, you know very well, p orbital has 3 orientation, px, py and pz, and maximum how many electrons can be accommodated? Maximum 6 electrons can be accommodated. So there are only 6 groups in p block element, group number 13 to group number 18. General electronic configuration ns2 np126. What is atomic radius? You know atomic radius, आप सब जानते हो what is atomic radius. So if I talk about the atomic radii, then you must understand that atomic radii decreases or increases when we move towards the period or group. As we move towards the group, means if I talk about a group, you know very well, in the group 1 orbitals, yeah, 1 cell, you can say that it starts increasing. First, from the second it starts, third, fourth, as the number of cells will increase, number of orbit will increase, then you know very well the atomic radius is going to increase. So atomic radius increases from top to bottom and decreases from left to right in the periods. Ionization enthalpy, if I talk about ionization enthalpy, then the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. As we remove one electron, then we remove second electron, then we remove third electron. So as we remove one electrons from the orbit, you know very well the amount of energy is going to increase. So here you can see the ionization enthalpy of first ionization enthalpy will be less than second, it will be less than third. So as we remove one electron, the ionization enthalpy is also going to increase. Electronegativity, as we know very well, as we move from left to right into the periods, the electronegativity increases, and similarly if we move from top to bottom in a group, the electronegativity decreases. Physical properties, will study one by one each and every p block elements, but these have been separated into the 2 parts, class 11 and class 12. In the class 11 we are going to discuss only group number 13 and group number 14, and in class 12 we are going to discuss from group number 15 to group number 18. In class 11, one more thing we are going to discuss, the general physical properties. Means it is going to be same for class 11 also and class 12 also. So in the general physical properties, if I talk about especially these things, atomic radii, ionization enthalpy, electronegativity, physical properties, as these things you can see atomic radius, melting point, boiling point,
ionization enthalpy, atomic radius, ionic radius, these all the things are called physical property, as you know very well, right? So now question comes here, what are the oxidation states of group number 13 to group number 18? In the group number general oxidation state or general valence, you can say +3, group number 14 +4. Similarly, group number 15 +3, group number 16 2, group number 17 1, group number 18 0. But there is a difference in the oxidation state. In group number 13 +1 and +3, group number 14 +4, -4, and even +2 is also there. Group number 15 +5, +3, -3. Group number 16 -2, +6, +4, -1 also. Group number 17 -1, +1, -1, then after them +7, +5, +3 is also there. Group number 18 0. So these are the general oxidation states of group number 13 to 18. Now let's start group number 13. In this video, lecture number 1 of P block elements, we are going to discuss group number 13, that is boron family, right? What is known as group number 13? Group number 13 is known as boron family. Remember, dear students, what is boron family? Because the elements starts from boron in group number 13. What are the elements? Boron, aluminium, gallium, indium, thallium, and anthracite. These are the elements present in group number 13. The atomic number of boron is 5, atomic number of aluminium 13, atomic number of gallium 31, atomic number of indium 49, atomic number of thallium 81, atomic number of anthracite, that is 130. The atomic mass of boron 10, atomic mass of aluminium 27, atomic mass of gallium 70, atomic mass of indium 115, atomic mass of thallium is 204. It's not of times 204 is of thallium. So here the things which you have studied, that is element, atomic number and mass number. You know very well, it's denoted by capital B, it is denoted by AL, it is denoted by GA, it is denoted by IN, it is denoted by TL, and here UUT. Now question is general electronic configuration of these elements. The general electronic configuration of boron is helium 2s2 2p1. The general electronic configuration of aluminium neon 3s2 3p1. The general electronic configuration of gallium argon 3d10 4s2 4p1. The general electronic configuration of indium krypton 4d10 5s2 5p1. The general electronic configuration of thallium xenon 4f40 5d10 6s2 and 6p1. So this is the general electronic configuration of this group number 13 elements. Now the most important part we are going to talk about is atomic radius. Here there will be one little bit confusion. The student can say that, sir, if you really notice these things, then only you will be able to know, otherwise you will not be able to know. You know very well, as we move top to bottom, means in a group, as we move, the atomic radius increases. But here you can see the atomic radius of boron is 88, the atomic radius of aluminium 143, the atomic radius of gallium is 135. As we move top to bottom, the atomic radius increases. But what happened here? The atomic radius of aluminium 143 picometer and the atomic radius of gallium is 135. The question can arise here, why atomic radius of gallium is less than atomic radius of aluminium? Now you will have an answer. So here you have written in the electronic configuration, 3d electrons are there, right? Here you are. If you notice these questions, now then suddenly a question arises in your mind. You can answer this question by your way also, but if you know very well, as the number of electrons increases, the size will contradict. So that's why here the aluminium and gallium, there is a difference. Here having 4 period, then also you know very well there are 4 orbits. In the first orbit 2 electrons, second orbit 8 plus 2 10 electrons, 8 electrons, then third orbit 18, fourth orbit 3 electrons. Now as the number of electron increases, you know very well nuclear effects, as the atomic size decreases. So here as the number of electrons will increase, there will be a contradiction. You know very well the nuclear effect will be there. So here that's why the size of gallium is less than the size of aluminium.
Now if I talk about indium, now here you can see 167 picometer. If I talk about the size of thallium, 170 picometer. Now if I talk about melting point and boiling points, which is represented in Kelvin, here these are, except this boron, all are metals, and metals melting point and boiling point are very high. So here you can see the melting point of boron is 2543 Kelvin. The melting point of aluminium 933 Kelvin. The melting point of gallium 303 Kelvin. The melting point of indium 430 Kelvin. The melting point of thallium 576 Kelvin. What you have seen, the melting point decreases as we move top to bottom. The number of orbits increases. As the energy level increases, the melting point and boiling point decreases. Now we talk about the boiling point, that is also represented in Kelvin. If I talk about the boron boiling point, that is 3923 Kelvin. The aluminium boiling point is 2740 Kelvin. The gallium boiling point is 2676 Kelvin. The indium boiling point is 2353 Kelvin. The thallium boiling point is 1730 Kelvin. So as you have seen, these are the physical properties. Except this, there are ionic radius also, ionization enthalpy, first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy, density is there. Much more things are there in the physical properties. First of all, if you want to take a click of this board, then you can take a click. Otherwise, right now we will explain more some physical properties. Right? So now question is, now you can ask me, sir, what happens in group number 13? Means boron family, what are the things we are going to study? So in my dear students, the two elements, boron, aluminium. These are the two important elements and their compounds which we are going to discuss in group number 13, boron family. You know very well boron gives many compounds like bauxite, what we say that Na2, B3O7 and B2O3, many more compounds of boron are there. Similarly, aluminium also, means much more thing we are going to discuss about boron and aluminium. So this group elements show a wide variation in the properties. Boron is a very typical nonmetal. Aluminium is metal but shows many chemical similarities of boron also. Gallium, indium, thallium, niobium are almost exclusively metallic in character. So what you have seen, the similar properties of boron and aluminium. Rest, gallium, indium, thallium are showing metallic properties. Here it is a doubt, that is generally we say that boron is a nonmetal. From metal starts from aluminium, but here there are much more similarities. So boron forms covalent compounds. So here there are so many differences between the other elements of group number 13 and boron. So boron is fairly rare element, mainly occurs in orthoboric acid. हमेशा याद रखना बच्चों, बोरन जो है जब भी ऑर्थोबोरिक एसिड के रूप में नेचर में पाया जाता है. अब क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्थोबोरिक एसिड? ऑर्थोबोरिक एसिड जो है एक कंपाउंड है बोरन का जिसका केमिकल फार्मूला H3BO3 होता है, राइट? तो बोरिक एसिड के रूप में हमें बोरन प्राप्त होता है. गॉट इट एवरीवन? नाउ देयर आर मच मोर कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स, केराइट. India borax occurs in Puga Valley, that is in Ladakh. लद्दाख और राजस्थान में सांबर लेक है, वहां पर जो है आप लोगों को इंडिया बोरेक्स के रूप में आप लोगों को ये कंपाउंड मिलेगा. अगर आप बात करें ना बोरन की, तो बोरन का बहुत कम मात्रा हमारे अर्थ क्रस्ट में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.001% बाय मास. और आप लोगों को पता होगा बोरन के दो आइसोटोप्स हैं, B10 एंड B11. आइसोटोप्स तो आप लोग जानते ही होंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर B5. तो एक जो है 10 वाला है और एक 11 वाला. ये 10 वाला 19% है, हमेशा याद रखना बच्चों, और ये जो है 81% है. तो ये दोनों आइसोटोप्स को हमें याद रखना है बोरन का, जो एक B10 और एक B11. तो ये दोनों आइसोटोप्स की जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. एक 19% है और दूसरा 81% है. उसी तरह एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम इज मोस्ट एबंडेंट मेटल एंड इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. 8.3% by mass after oxygen and silicon. Oxygen 45.5% and silicon 27.7%. एल्युमिनियम का आप लोग जानते हैं कि बॉक्साइड का जो सबसे ओर के रूप में जो मिलता है, बॉक्साइड के फॉर्म में हमें मिलता है. उसका केमिकल फार्मूला Al2O3 × 2H2O होता है. क्रायोलाइट
जो Na3Al F6, ये दोनों जो है एल्युमिनियम के बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अगर मैं बात करूं उसके और मिनरल्स जैसे मिका हो गया, राइट, मिका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, इस सब में आपको मिल जाएगा। गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है ये सब बहुत ही कम मात्रा में नीचे में पाए जाते हैं। नियोबियम जिसका सिंबल NH है, उसका एटॉमिक नंबर, अब याद रखना बच्चों कि ये अनट्रायम जो पिछले साल इस ग्रुप नंबर का फाइंडिंग किया था साइंटिस्ट ने, उसके लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था, इसका नाम नियोबियम है, याद रखना, NIHONIUM, निहोनियम, निहोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 113 है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस वर्ड अनट्रायम अब नहीं बोलना है, अब निहोनियम, क्या बोलेंगे, निहोनियम, जिसका सिंबल क्या होगा, NH, याद रखना बच्चों, निहोनियम का सिंबल NH। ग्रुप नंबर 13 का जो लास्ट एलिमेंट है जिसका नाम निहोनियम है, राइट, और इसका एटॉमिक मास 286 हो जाएगा, याद रखना बच्चों, 286, गॉट इट। निहोनियम इसका ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट, लास्ट पीरियड 7th पीरियड का ये एलिमेंट है निहोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 113 और एटॉमिक मास 286 ग्राम पर मोल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पर मैंने लिख दिया है, तो जैसे मैंने लिखा है 5f14, 6d10, 7s2 और 7p1। अब आप बता सकते हैं कि इस सब में से बहुत ही कम मात्रा है जो इसको प्राप्त किया जाता है, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। इसके भी दो आइसोटोप्स हैं जो 20 सेकेंड्स इनका हाफ लाइफ पीरियड अगर बात करूं तो अभी भी निहोनियम के ऊपर में बहुत सारा प्रिपरेशन चल रहा है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ग्रुप नंबर 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NS2NP1, राइट, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे बोरन से लेकर के निहोनियम तक, तो आपको देखना कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे बढ़ेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जैसे बोरन और एल्युमिनियम का, ये दोनों का तो आप जानते हैं कि इन दोनों का जो कोर है हीलियम और नियन है। लेकिन गैलियम से मैं बात करूं, राइट, गैलियम, इंडियम, इन लोगों के पास जो है आप देख सकते हैं किसी में D10 है, किसी में F14 है, राइट। तो ये सारी चीजें जब आती है तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द फर्स्ट टू एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं बोरन और एल्युमिनियम का, इन दोनों का छोड़ करके इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जो बाकी क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स। ये दोनों जनरल है अपना, NS2NP1 को तो जनरली शो कर दिया, लेकिन यहाँ से D का 10, F का 14, तो ये जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ते जाता है, राइट। उसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात करूं, जैसे ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। खाली एक ही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि गैलियम का एल्युमिनियम से रेडियस कम है, और ये वेरिएशन इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए गैलियम में, राइट। तो जिस कारण से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज गैलियम पर बढ़ जाएगा और उसका एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा। तो गैलियम का एटॉमिक रेडियस 135 पिकोमीटर है और एल्युमिनियम का 143 पिकोमीटर। तो बच्चों ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 143 और 145 में आप लोग, मैंने जैसे बताया भी था, यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो सकता है, आप क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हो कि व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम। उसके बाद सेकेंड है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो जनरल ट्रेंड होता है कि अगर स्मूथली आप डाउन जा रहे हैं तो घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं तो वहां पे इजीली होता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, राइट। सो एज वी मूव टॉप टू बॉटम, द डिक्रीजेस ऑफ बोरन टू एल्युमिनियम इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन साइज, राइट। So the observed discontinuity in the ionization enthalpy values between the aluminum and gallium and between indium and thallium are due to inability of d electrons and f electrons which have low screening effect to complete the increase in nuclear charge। मेरे प्यारे बच्चों,
अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने तुम लोगों को बताया था IE1 will be less than IE2 will be less than IE3, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड से कम होगा, सेकंड थर्ड से कम होगा, मतलब इन लोगों का जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें ज्यादा लगेगी, राइट। तो आप ऑर्डर को आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो एक्सपेक्टेशन था, यही एक्सपेक्टेशन है, IE1 will be less than IE2 will be less than IE3। अगर हम इन तीनों के आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को सम करें तो बहुत ही हाई इफेक्ट होगा। पहले दो का तो कोई बात नहीं, लेकिन एल्युमिनियम से फिर गैलियम, फिर उसके बाद इंडियम, थैलियम बढ़ेंगे तो बहुत ही हाई इफेक्ट होने वाला है इन लोगों का। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से कैसे क्या हमें लिखना है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लुक भी आता है, कैसे देखने में लगता है। तो बोरन एक नॉन मेटल है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बोरन नॉन मेटल है, इसको छोड़ के बाकी सारे मेटल है, लेकिन बोरन और एल्युमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैच करती है, राइट। तो बोरन और एल्युमिनियम में अगर मैं पूछूं बोरन का कलर कैसा है तो ये बहुत ही काला कलर का सॉलिड होता है, हार्ड सॉलिड होता है, जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर बोरन का स्पेशली अगर आप देखोगे पूरे ग्रुप नंबर 13 में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरन का है। अगर आप पूछोगे कि सर हकीकत में इन सब का तो कम है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और इवन बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है, तो इसका एक ही रीजन है कि ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, लैटिस स्ट्रक्चर में प्राप्त होते हैं, जिस कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बाकी सारे मेटल्स जो है वो सॉफ्ट है, उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि बोरन का है। और वेल सारे मेटल्स हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होंगे, सारे के सारे हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट भी आप देखोगे कि सबसे कम है, मतलब हर बात में गैलियम कम हो रहा है। अगर आप लोग नोटिस करना, देखो मेल्टिंग पॉइंट बोरन का 2543, एल्युमिनियम का 933, इंडियम का 430, थैलियम का 576, लेकिन अगर आप नोटिस करें यहां पर तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन। यहां पर भी आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सही में गैलियम का सब कुछ ही कम हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि ये कम क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली ये गर्मी के महीनों में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसको ऑलरेडी आप कह सकते हो, जानते हो 303 केल्विन कितना होगा, 273 जो होता है 0 डिग्री होता है, राइट। 273 आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब ऑलरेडी वो लिक्विड स्टेट में समर सीजन में ऑलरेडी प्राप्त होते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं 2676 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट्स पे मत जाइए, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और इवन गैलियम जो एक मटेरियल है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगी। जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, राइट। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, अगर आप लोग देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट्स का डेंसिटी 2.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बोरन का 2.35, एल्युमिनियम का 2.70, गैलियम का 5.90, इंडियम का 7.31 और थैलियम का 11.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों ने देखा कि डेंसिटी भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि सर बोरन का एटॉमिक साइज छोटा होने पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोरन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड में उसके पास s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं क्या सर केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन हो सकता है आपका यहाँ पर कि जिस तरह से सर s ब्लॉक में हमने लिथियम और बेरिलियम में देखा था तो उसका एक अलग ही प्रॉपर्टीज होता है, तो क्या यहाँ पर भी बोरन का कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा होने के कारण इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, p वाला इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। द आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरन इज वेरी हाई, याद रखना प्यारे बच्चों। और दिस प्रिवेंट इट टू फॉर्म +3 आयंस एंड फोर्सेस इट टू फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। यही एक रीजन है कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण ये जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। बोरन और एल्युमिनियम ये दोनों ही लगभग, लेकिन याद रखना बोरन जो है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा है तो जिस कारण से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और जैसे बोरन से आप एल्युमिनियम की तरफ मूव करोगे
तो ये फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन इंथैल्पीज कंसिडरेबल एल्युमिनियम 3+ के रूप में अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड इंटरवीनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड ns2 electrons tightly and thereby restricting their participating in bonding. As a result of this, only p orbital electron may be involved in bonding. In fact, gallium, indium and thallium all have +1 and +3 oxidation states are absorbed, and the relative stability of +1 oxidation state progressively increase for heavier elements. एल्युमिनियम का बढ़ेगा, गैलियम का बढ़ेगा, इंडियम का बढ़ेगा, थैलियम का। सबसे ज्यादा थैलियम, उससे कम इंडियम, उससे कम गैलियम, उससे कम एल्युमिनियम। तो इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर तुमको मैं बात करूं कि भाई साहब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने नहीं लिखा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जैसे मैंने तुमको बताया, बोरन का एक अलग ही प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, बाकी सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो आना चाहिए कि बोरन जो है भाई उसका भी एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है और उसका एटॉमिक साइज छोटा है, सबसे ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, तो कुछ ना कुछ तो बोरन गड़बड़ करेगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर तुम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखना चाहते हो नोटबुक में तो लिख लीजिए। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में 801 किलो जूल पर मोल, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में 2427 किलो जूल पर मोल और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में 3659 किलो जूल। मतलब याद रखना ये 800 से शुरू होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 800 किलो जूल पर मोल, बाकी सबका जो है लेस देन 600 है। ये अगर मैं बात करूं तो 577 इसका, 579 इसका, 558 इसका और 589 इसका, तो बाकी सब जो है मतलब 500 से 600 के बीच में आ जाते हैं, लेकिन इसका जो है 801 किलो जूल। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका ज्यादा क्यों होता है, आएगा? तो तुम खुद सोचो, एक तो ऑलरेडी सेकंड s से सेकंड p में इलेक्ट्रॉन गया है, राइट? सेकंड s से सेकंड p में एक, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है और वो भी ऑर्बिटल्स चेंज हो रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स चेंज हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में गया है और उसको तुम निकालोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड एनर्जी। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है उस प्रॉपर्टी को बरकरार रखना है तुम लोगों को। लेकिन जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे तो एल्युमिनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो +1 और +3 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। गैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, याद रखना प्यारे बच्चों। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। द कंपाउंड्स ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट as expected from energy considerations are more ionic than in +3 oxidation state। हाँ, एक चीज और क्वेश्चन यहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि सर +3 ज्यादा आयनिक होगा या +1 ज्यादा आयनिक होगा? क्योंकि मैंने तुमको बताया कि बोरन कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एल्युमिनियम से लेकर के नियोबियम तक सबके सब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन कौन से? +1 और +3। तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर +1 ज्यादा आयनिक होगा या +3? मतलब एल्युमिनियम +1, तो मतलब अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा या +3? हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर आयनिक देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब in trivalent oxidation state, the number of electrons around the central atom is molecule of the compound of these elements। अगर बोरन की बात करूं ना तो बोरन +3 में अगर बात करूं तो BF3 will be having only 6 electrons such as electron deficient compound। तुम लोगों को पता है कि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि BF3 is an electron deficient compound। याद है तुम लोगों को? BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अगर याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी याद कर लो कि BF3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है एंड इट हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी, राइट? इसको कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी स्टेबल करे और लेविस एसिड का कैरेक्टर शो करे। लेकिन तुमको पता होगा कि जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, the tendency to behave on Lewis acid decreases with increase in the size। तो अगर तुम BF3 से BCl3 की तरफ जाओगे
तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज। जैसे जैसे मान लो BF3, BCl3, BI3, BBr3, तो जैसे तुम मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन में आओगे, ब्रोमीन में आओगे, आयोडीन में, जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो इनका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इजीली एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म BCl3 into NH3। अगर तुम बात करो कि अगर BCl3 कंपाउंड है और उसमें तुमने अमोनिया मिला दिया तो तुरंत ही बोरॉन क्या करेगा, अमोनिया का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं AlCl3 की बात करूं, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करूं, तो अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड भी क्या करेगा, दूसरे अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के दोनों क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स लेकर के Al2Cl6 का फॉर्मेशन जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। In trivalent state, most of the compounds being covalent and hydrolyzed in water. It is the example. तुम लोगों ने बेरिलेट आयन का नाम सुना होगा, यही रीजन है कि ट्राई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाएगा, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ये सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन में 3d ऑर्बिटल्स। अगर अल्युमिनियम की बात करें तो sp3d2 जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तुम लोगों को सीखने को क्या मिला कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने बताया तुमको कि +1 विल बी मोर आयनिक देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो जो चीज तुम सीख रहे हो उसको दिमाग में, BF3 के सामने अगर मान लो NH3 मिल गया तो क्या बनेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि अगर BF3 को बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तुम लोगों को पता है कि बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। मान लो ये BF3 का स्ट्रक्चर है और इसको यहां पर नाइट्रोजन, अमोनिया, राइट, NH3, और इसका ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये तुरंत लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, तुरंत लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ये तुम्हारा BF3 NH3 स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब सॉरी, BF3 ने BCl3, क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर मैंने बताया था तुम्हारा घटेगा, तो BCl3 कर लो यहां पर, BF3 को छोड़ो, BCl3 को लो, तो BCl3 के साथ क्या होगा, ये तुरंत ही कंपाउंड बना करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन। और मैंने बताया था जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आओगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। चलिए उसके बाद हम बात करें, एक क्वेश्चन है हमारा NCERT में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Started electrode potential values for aluminum +3 and aluminum is 1.66 volt and of thallium is +1.26 volt. Predict about the formation of M+3 ion in the solution and compare the electropositive character of these two metals. अब दोनों का तुम लोगों का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दिया हुआ है एल्युमिनियम का और थैलियम का, मतलब ये दोनों Al3+ Al और गैलियम 3+ और गैलियम, इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में। देख लो यहां पर दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में Al3+ और एल्युमिनियम का -1.66 वोल्ट, Al3+ और एल्युमिनियम का कितना है -1.33 वोल्ट। उसी तरह गैलियम का, सॉरी थैलियम का दिया है +1.26 वोल्ट, थैलियम 3+ और थैलियम +1.26 वोल्ट, राइट, ये क्वेश्चन है, राइट। तो प्रेडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ M3+ आयन इन द सॉल्यूशन टू कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब तुमको यहां पर आंसर भी दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज फॉर 2 हाफ सेल reaction suggests that aluminum has a high tendency to make aluminum 3+ ion, whereas thallium is not only unstable but in the powerful oxidizing agent also. Thallium plus is more stable in the solution than thallium 3+. Aluminum being able to form +3 ion easily is a more electropositive than thallium. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तुमको बता दूं कि एल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि तुमको पता है कि एल्युमिनियम में 3d वैकेंट ऑर्बिटल भी है। लेकिन जैसे ही हम थैलियम के पास जाते हैं तो थैलियम में +1 ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू +3। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि मैं बता देता हूं तुमको। यहाँ पर जैसे तुम थैलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाओगे तो यहाँ पर तुम देख लो ऑलरेडी 4f14 है, 5d10 है, 6s2 है, 6p1 है, तो ये सिर्फ तुम्हारा 6p का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 6s2 का अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल जो होगा तो फिर वो इसीलिए यहाँ पर जो तुमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, +1.26 वोल्ट है, और ये एल्युमिनियम जो है इजीली तीनों इलेक्ट्रॉन को डिसोशिएट कर सकता है। तो यहाँ पर ये एल्युमिनियम का जो तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू है
-1.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर। अच्छा, एक चीज और मैं तुम लोगों को पूछना चाहूंगा, ऑक्सीजन और वाटर का तुम लोग जानते ही हो, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, राइट। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बोरन के ऑक्साइड्स के बारे में बता दूं। तुम लोग शायद जानते भी होंगे बोरन ऑक्साइड्स में उसके नीचे बोरन एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म करता है। और अगर एल्युमिनियम की बात करें हम लोग, तो एल्युमिनियम का बर्तन हम लोग घर में ज्यादा यूज करते हैं। तुम लोग देखते होंगे कि तुम्हारे घर में एल्युमिनियम के ज्यादा बर्तन होंगे, जो खाना बनाने वाले जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो यूटेंसिल्स अक्सर एल्युमिनियम के होते हैं। अब उस एल्युमिनियम को जब हम लोग कुछ खाना पकाते हैं उस समय नीचे में देखना एक थिन लेयर उसके ऑक्साइड्स का बन जाती है। वो क्या करता है, तुम्हारे मेटल को प्रोटेक्ट करता है, वो तुम्हारे मेटल को बर्बाद होने से बचाता है। क्या बर्बाद होने से बचाएगा, तो क्वेश्चन पूछोगे। जैसे एल्युमिनियम के बर्तन को जैसे हम उसमें कुछ खाना पकाएंगे तो एल्युमिनियम के बर्तन के ऊपर में एक थिक लेयर बन जाता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का एक लेयर है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का जो लेयर होगा वो तुम्हारे बर्तन को नष्ट होने से बचाएगा। तो बोरन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एल्युमिनियम फॉर्म्स अ वेरी thin oxide layer on the surface which protects the metal from further attack. Amorphous boron and aluminium metal on heating in air form B2O3 and Al2O3 with dinitrogen at high temperature they form nitrates. तो सबसे पहले बच्चों जितना भी जैसे बोरन है और एल्युमिनियम है, तो इन दोनों को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, बराबर, तो सबके सब कितने हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या बनाएगा जल्दी बताओ, B2O3 बोरन ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यही एल्युमिनियम ऑक्साइड जो मैं बता रहा था, किसी भी एल्युमिनियम बर्तन का जो नीचे में दिख रहा है, यहाँ पर देखना तुम लोग काला काला हो जाता है, वो कुछ और नहीं है, बर्तन नहीं घिसता है, उसमें जो है ये ऑक्साइड्स के थिन लेयर है। जो हम लोग अगर बर्तन को साफ करते हैं तो वो एक्चुअली हमारे मेटल को प्रोटेक्ट करता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। और ये एल्युमिनियम का जो मैंने बताया वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वो एमोर्फस, एल्युमिनियम तो ये थिन लेयर बनाता है, लेकिन ये एमोर्फस बोरन जो होता है, एमोर्फस बोरन और एल्युमिनियम, ये दोनों को अगर हम गर्म हवा में या हीट करें, सीधा सीधी समझ जाओ, तो ये दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो सेम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब दोनों का +3 ऑक्सीडेशन, तो Bn और Aln, बोरन नाइट्राइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड। समझ में आया? तो nature of these oxides varies down towards the group boron trioxide is acidic and reacts with basic metallic oxides forming metal borates. Aluminum and gallium oxides are amphoteric and those indium and thallium are basic in nature. बहुत ही important question है यहाँ पर कि आखिर सर ये सारे एलिमेंट्स की जो ऑक्साइड्स होंगे, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अब तुमको जैसे मैंने बताया ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं, राइट। तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, मतलब जो भी ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, जैसे B2O3 था, Al2O3 था, गैलियम ऑक्साइड, तो जैसे Ga2O होगा, इंडियम भी प्लस ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सबका ज्यादा स्टेबल है। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स तुम लोग जानते हो कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन यहां पर जो बोरन का ऑक्साइड्स है वो मेटल बोरेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेटल बोरेट्स बनाएंगे। और बोरन ऑक्साइड्स या B2O3 जो ट्राई ऑक्साइड्स है, ये एसिडिक इन नेचर है। याद रखना बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। B2O3 कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। अगर मैं फिर एल्युमिनियम और गैलियम की बात करूं तो एल्युमिनियम और गैलियम ये दोनों के दोनों शो, मतलब दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, जिसको आप एम्फोटेरिक कह सकते हो, राइट। ये दोनों प्रॉपर्टी और ये दोनों जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम लोगों को ऑक्साइड्स में देखो कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर क्या किए थे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, राइट, रिएक्शन विद एयर, एयर का मतलब सीधा सीधी बर्निंग, जलाया हमने, ठीक है। तो यहां पर तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी मिल गया एसिडिक और बेसिक का। दूसरा, अगर हम इस पूरे एलिमेंट्स में से स्पेशली याद रखना बच्चे, इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो स्पेशल कैरेक्टर है बोरन और एल्युमिनियम। अगर हम एसिड्स और अल्कलीज से रिएक्शन करें, मतलब ये रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज, अब इसको हटाओ,
ये सारे प्रॉपर्टीज अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना कि किसी भी कंपाउंड को अगर हम कुछ बनाते हैं तो रिएक्शन क्या बनेगा, क्योंकि बार बार तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर रिएक्शन करने पे कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब मान लो रिएक्शन विद एसिड, एसिड में कौन सा एसिड डालोगे, HCl डाल दो, बताओ क्या बनेगा। बोरन को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तुम रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं। सबसे पहले बता देता हूं, बोरन जो है एसिड और अल्कली से के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अल्युमिनियम और बाकी जो मेटल्स, स्पेशली अल्युमिनियम ही ले लो, अल्युमिनियम डिसॉल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस अल्कलीज, सो दे शो एम्फोटेरिक कैरेक्टर। जैसे मैंने तुमको अभी जस्ट बताया था कि ये जो है रिएक्शन नहीं करेगा, बोरन अल्युमिनियम के साथ नो रिएक्शन। अल्युमिनियम मेन यहां पर अल्युमिनियम का ही लेना है, बोरन और अल्युमिनियम दो ही प्रोडक्ट के बारे में अभी हम लोग ग्रुप नंबर 13 में पढ़ेंगे। तो अगर मैं अल्युमिनियम की बात करूं, अल्युमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे तुम डिसॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा पता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। मतलब अल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कैसे टूटेंगे पता है, Al3 प्लस Cl माइनस प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट। देखो रिएक्शन बैलेंस मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैं सीधे बताया तुमको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में यहाँ पर डिसॉल्व किया। अब तुमको रिएक्शन बैलेंस करना है तो रिएक्शन बैलेंस इजी है, 2Al कर दो, वहां पर 6HCl कर दो, 2Al 6HCl बराबर। तो यहाँ पर Al3 प्लस के आगे में भी 2 होगा और 6Cl और 3H2 बराबर। तो ये तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस। अभी यहाँ पे तुमको नहीं सोचना है, यहाँ पे सीधा सीधी सोचना है कि अगर अल्युमिनियम को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, अल्युमिनियम डिसॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में पास करेंगे तो क्या बनेगा पता है, ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का निर्माण करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का किसी भी सरफेस पर, मतलब सीधा सीधी समझ जाओ Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम इसको अल्कलीज, अल्कलीज मतलब बेस, अल्युमिनियम को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा पता है तुमको, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, मतलब 2Al। अल्युमिनियम को किससे रिएक्शन करना है, अल्कली, अल्कली मतलब बेस, बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके साथ तुम डिसॉल्व करोगे तो जैसे बेरिलेट आयन था तो तुमको पता होगा उसी तरह से यहां पर भी Al OH का होल 4 होगा। कितना होगा, OH का होल 4। अब पूछोगे तुम कि सर ये है क्या, इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। यहां पर अल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। प्यारे बच्चों, तो तुमने देखा यहां पर अल्युमिनियम, जैसे मैंने बताया कि ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, तो एसिड में भी ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, बेस में भी ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, अगर तुम इन सारे मेटल्स को स्पेशली अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करोगे, हैलोजन का मतलब बताओ, हैलोजन का मतलब हो गया तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2। मान लो कि अगर तुम X2 के साथ इनको रिएक्शन करते हो, जितने भी ग्रुप नंबर 13 है, बोरन तो जनरली नहीं करेगा, लेकिन अल्युमिनियम की बात करें तो अगर तुम इनको X2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या बनाएगा पता है, MX3, क्योंकि तुमको पता है कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो यहां सॉरी वैलेंसी +1 है, तो ये MX3 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये X यहां पर वही है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। एक क्वेश्चन है तुम्हारा यहां पर, white fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride, give reason। अब तुम देखो कभी केमिस्ट्री लैब में अगर गए होगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये एक कंपाउंड है। देखियो कभी केमिस्ट्री लैब गए हो तो केमिस्ट्री लैब में कभी भी अगर तुम जाना, तो अगर नहीं भी हो तो ये रिएक्शन करके तुम लोग बना सकते हो AlCl3, राइट। तो इसमें तुम क्वेश्चन है तुम्हारा कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के ऊपर में व्हाइट फ्यूम्स अपीयर हो जाते हैं, मतलब एक उजला का मतलब सफेद कलर का परत जो है उसके ऊपर में लग जाता है, उसके रीजन बताने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें आंसर में ये दिया है कि एल्युमिनियम क्लोराइड पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, पूरा एक साथ पार्शियली हाइड्रोलाइज होकर के एटमॉस्फेयर में जो
एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टू लिबरेट HCl गैस, ये पूरे वातावरण में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl गैस को इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बाहर निकालता है। तो ये जितने भी HCl गैस बाहर निकलते हैं वही तुम लोगों का ये जो बॉटल होता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का दिया है। तो ये था बच्चों हम लोगों का आज का लेक्चर बोरन फैमिली। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरन, जैसे बोरेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, और उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरन, और बोरन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, डाइबोरेन हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, इवन एल्युमिनियम का भी यूजेस पढ़ेंगे, बोरन का भी यूजेस पढ़ेंगे। ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, एक और लेक्चर बोरन का बनेगा, उसके बाद हम लोग ग्रुप नंबर 14। तो समझ लेना कि आज जो कुछ भी तुमने पढ़ा है वो सब बोरन के बारे में था। अगर तुम लोगों को कोई डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखो। जब भी मैं ऑनलाइन लेक्चर देता हूँ तो उसमें बताओ कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं, तो क्या होगा कि हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। That's all for today. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe my channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. Thank you very much.